Namaskar friends. Today we are going to discuss about a very important topic, geological structure of India. It's geological structure of India. Now the question arises, why we should study this geological structure of India? इसे हम क्यों पढ़ें? तो there are certain significance behind that. What is that significance? पहले तुम समझे कि what is geological structure. तो geological structure is basically it is arrangement, layering, and layering of rock in the crust of earth. ये रॉक का जो है अरेंजमेंट है, लेयरिंग है, उसका बैंड बनता है, लिथिफिकेशन होता है. तो अर्थ के क्रस्ट में जो अरेंजमेंट और लेयरिंग होती है और उसका जब हम स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं स्टडिंग द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर. ठीक है. तो दिस इज बेसिकली अरेंजमेंट, लेयरिंग, एंड वन मोर थिंग इज दैट डिपोजिशन. Deposition is also there. So this is deposition of particles, arrangement of soil particles, and layering of particles, soil particles. And when this happens, this layering of rock happens, deposition and arrangement of the rocks happens, and that happens in the earth crust, then we call it as studying the geological structure. ठीक है. तो geological structure. Now the question arises, why we should study? क्यों पढ़ें हम इसे? So there is some significance behind that, and that significance is, first of all, it helps us to study the slope. Helps us to study the slope. Slope क्या है? Relief क्या है? Slope means relief क्या है? Relief. Then again, it also helps us to study the kind of soil we have at that particular place. Soil कैसा है? Because soil determines so many things. किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड करती है? तो वो सॉइल पे, क्योंकि उससे एग्रीकल्चर डिटरमाइन होता है. एग्रीकल्चर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल, बिकॉज फूड क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टू दैट. तो जैसा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा उसी तरह की सॉइल होगी. ठीक है. तो एक तो पहला स्लोप, इरोजनल सॉइल है या डिपोजिशनल सॉइल, ये तो स्लोप पे ही डिपेंड करता है. अगर स्लोप इज मोर, देन द सॉइल विल बी इरोजनल. स्लोप इज लेस और जेंटल, द सॉइल विल बी डिपोजिशनल. है ना. देन वी हैव द characteristics of the soil which is determined over there. So along with this slope, relief, soil, there are certain more things. Nature of it is also a reservoir of minerals. Geological structure tells us that how in a particular place the mineral comes into existence. So this is also reservoir of minerals. ठीक है. मिनरल्स का रिजर्वायर है. जैसे अगर विंध्यन रॉक है तो आपको पन्ना माइंस मिल जाएगा वहां पे.
वी विल स्टडी दिस फर्दर। तो जिस तरह के का हमारे पास जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वैसा ही सॉइल होगा, है ना, वैसा ही मिनरल्स भी हमारे पास होंगे। तो दैट विल बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। दैट्स व्हाई इट इज एसेंशियल टू स्टडी द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्या है, एक तो पहली चीज है कि व्हाट इज जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो दिस इज डिपोजिशन, अरेंजमेंट, लेयरिंग ऑफ रॉक इन दी क्रस्ट, है ना, क्रस्ट के ही ऊपर जहाँ पे हम लोग रहते हैं। एंड देन व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडीइंग दिस, इसको पढ़ने का उद्देश्य क्या है हमारा। तो भाई किसी भी चीज को क्यों पढ़ते हैं हम, anything which revolves around the human being that becomes resource. Otherwise if anything is not in the use of human being that becomes neutral stuff. So since it has to become the resource, it is resource for the human being, that's why we study. ठीक है, तो ये क्या है, हमारे लिए एक रिसोर्स है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो हम अपना सर्वाइवल, वी विल क्वेश्चन आवर सर्वाइवल। ठीक है, तो जस्ट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, प्रोटेक्ट द ह्यूमन बीइंग एंड एनीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द ह्यूमन बीइंग, वी स्टडी दिस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो ये है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। एक तो पहला स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, सॉइल को डिटरमाइन करेगा। तो रिलीफ and slope, relief and soil, we can say rather that this is one subtopic, and again this is reservoir of mineral. ठीक है, अब क्या होगा, when we have these two things, the economy of the country will be determined. If the geological structure is good, obviously the economy of the country will be at the boom. वो कहते हैं ना कि अगर बेस सही है तो ऊपर बिल्डिंग सही सही खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या है, एक तो क्या, स्लोप, रिलीफ, सॉइल एंड रिजर्वायर ऑफ मिनरल। अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डिजास्टर मैनेजमेंट। कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्पफुल है ये, अगर हमें पता है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है तो उसके हिसाब से वी कैन प्रेडिक्ट कि वहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है कि नहीं हो सकती है ना, अर्थक्वेक हो सकता है कि नहीं, वॉल्केनिज्म हो सकती है कि नहीं, वॉल्केनिज्म। अब जैसे मान लीजिए आप जापान में, दिस इज एन अर्थक्वेक प्रोन एरिया, तो उसी तरह से वहाँ पे लोगों ने क्या डिज़ाइन किया है, हाउसेस का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है। तो उन्हें पता है कि हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि अर्थक्वेक होना ही होना है। तो उस तरह से बिल्डिंग मटेरियल वो लोग हल्की बिल्डिंग मटेरियल बट ड्यूरेबल बिल्डिंग मटेरियल्स वो लोग यूज़ करते हैं और उस हिसाब से बिल्डिंग्स बनाई जाती है, ब्रिजेस बनाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि studying the geological structure is also helpful in the preparation of the economy, we can say, ठीक है, of a country. Now what happens, ये तो हमारा हो गया आपको कि what is ये। अब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं रॉक। ठीक है, ROCK, ये। अब रॉक में R स्टैंड्स फॉर रेगोलिथ। रेगोलिथ क्या है, तो अपर पोर्शन ऑफ द सॉइल विच इज unconsolidated material, unconsolidated material on the soil. Then comes O. O is organic matter. This also refers to the vegetation, है ना। अब ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आएगा,
तो भाई वेजिटेशन से ही आएगा. When the vegetation dies out, it becomes the different kind of organism strive onto that. उस पे वो डिपेंड करते हैं और वहाँ के ऑर्गेनिक मैटर को भी ये डिटरमाइन करता है. ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर. देन कम्स C stands for compressibility, compression या compressibility. अगर रॉक हार्ड है, सॉफ्ट है, ये उसके कॉम्पैक्टनेस, कंप्रेशन एंड कॉम्पैक्टनेस ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो उस पे क्या हार्ड है, सॉफ्ट है, लूज सॉइल है. ठीक है, तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? कॉम्पैक्टनेस पे. ठीक है. और ये कॉम्पैक्टनेस जो है, ये आपको जो उससे ये डिटरमाइन करता है कि किस तरह के मिनरल पाए जाएंगे. तो उसको हम लोग उसको मिनरल्स हार्डनेस जो है, मिनरल्स हार्डनेस, उसको हम लोग मोह स्केल पे मेजर करते हैं. ठीक है, तो दिस इज हाउ जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि वी आर स्टडिंग द रॉक डायरेक्टली. रॉक से हम काफ़ी सारी चीज़ों का पता चलता है. ठीक है, अब जब हम लोगों ने ये मिनरल्स की हार्डनेस की बात की है, तो एक हम लोग और चीज़ डिस्कस करेंगे एंड द नेम ऑफ दैट थिंग इज बोरोवियन मेटामॉर्फिज्म. बोरोवियन मेटामॉर्फिज्म. कट. Start. So now let us discuss about the Borovian metamorphism. Borovian metamorphism. This is depth in meters. Depth in meters, and this is temperature scale. Temperature, increasing temperature scale है ना, increasing temperature scale है ये. अब इस पे देखिए, ये हो गया 100 डिग्री, ये 200, 300 डिग्री सेंटीग्रेड. This is 400 degree centigrade, 500, 600, and this is 700. As soon as the depth and the temperature increases, the hardness of the rock increases because the particles are more compact. अच्छे से आपस में क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं. और जब ये अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं तो क्या होते हैं, काफ़ी कठोर हो जाते हैं, बाइंड कर लेते हैं आपस में, और वो काफ़ी कठोर मिनरल होता है. दैट इज़ अ वेरी हार्ड काइंड ऑफ मिनरल. ठीक है, तो इसको वी कैन सी, इसको प्रॉपर्ली वी कैन डू लाइक दिस. The hardness of the mineral increases. Hardness of mineral increases here. ठीक है, हाँ.
तो पहला क्या है, इस पॉइंट पे जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 8 मीटर्स ऑफ डेप्थ है तो सेल का फॉर्मेशन होगा, SHALE। नेक्स्ट पॉइंट पे स्लेट, थोड़ा इसके बीच में यहाँ पे फिलाइट, तो सेल क्या है, जब काफी थोड़ी में जब गर्मी ज्यादा आएगी, व्हेन सेल विल ऑब्जर्व मोर हॉट, डिग्री ऑफ हॉटनेस विल बी मोर, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्लेट विल बी कन्वर्टेड इनटू फिलाइट, एंड देन फिलाइट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिस्ट, यहाँ पे cyst will be converted into niche, and then we have the last one is granite। ये इस तरह से ये 700 डिग्री के आसपास क्या होगा, हमारा ग्रेनाइट होगा। तो इस तरह से दिस इज हाउ द मेटामॉर्फिज्म टेक्स प्लेस इन द रॉक, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर हार्डनेस इज मेजर्ड बाय मोहो स्केल। वेरी सिंपल है ना। तो मोहो स्केल पे हम लोग उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द बोरोवियन मेटामॉर्फिज्म, है ना। एंड नेक्स्ट इज we will study about the geological structure of India, ठीक है। Now, about the geological structure of India, there is two important feature. पहला क्या है? The first is Indian geological structure has seismotectonic setup. Seismotectonic setup. और दूसरा क्या है, इंडिया इज बिल्ट अप ऑफ 3 proto-continents. So these are the two important features of the Indian geological structure. पहला क्या है, seismotectonic setup. Seismotectonic setup means India has stable south and unstable north. India has stable south and unstable north. Stable peninsular region, and unstable extra peninsular region, है ना। स्टेबल पेनिनसुलर रीजन बिल्कुल शांत है, अब उसके अंदर कोई हलचल नहीं हो रही है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज क्रेटोनिक। क्या बोलते हैं इसे हम, क्रेटोनिक, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रेटोनिक। एंड व्हाई दिस एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन से यहाँ पे क्या मतलब है, गंगा ब्रह्मपुत्रा रीजन जो पूरा प्लेन रीजन है, प्लस हिमालय, दो चीजें, गंगा ब्रह्मपुत्रा पूरा प्लेन हो गया, आपको इधर सतलज से लेके गंगा ब्रह्मपुत्रा तक ये पूरा प्लेन रीजन, और सेकेंड वन इज द नॉर्दर्न हिमालय, इट इज अनस्टेबल, ठीक है। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्रा और नॉर्दर्न हिमालय इज अनस्टेबल। व्हाई दिस इज अनस्टेबल,
Why the extra peninsular region is unstable? Can anyone say? हाँ जी, हाँ, right. So it is a zone of subduction. It is a zone of subduction. ठीक है. जोन ऑफ सबडक्शन मतलब एक के ऊपर दूसरे का आना, है ना. अब क्या है, इफ यू सी दैट दिस इज इंडियन लैंड मास, ठीक है, दिस इज कॉल्ड गोंडवाना लैंड, दिस इज कॉल्ड गोंडवाना लैंड. और इधर जो यहाँ पे बीच में हिमालय है, और हिमालय के ऊपर में ये जो पार्ट है सारा, दिस इज यूरेशियन लैंड, यूरेशियन लैंड है, ठीक है. दिस इज यूरेशियन लैंड, दिस इज गोंडवाना. नाउ इट इज सेड दैट इंडियन लैंड मास इज मूविंग टूवर्ड्स द यूरेशियन लैंड मास. ये जो है 10 सेंटीमीटर हर एवरी ईयर्स जो है वो खिसक रही है आगे, है ना, आगे की ओर जा रही है. एंड इट इज गोइंग, सपोज दिस इज यूरेशियन लैंड, इट इज सबडक्टिंग टूवर्ड्स द यूरेशियन लैंड. मतलब इंडियन लैंड मास नीचे है और यूरेशियन लैंड मास ऊपर की ओर है, तो इट इज सबडक्टिंग टूवर्ड्स द यूरेशियन लैंड. नाउ दिस फेनोमेना इज ऑलवेज हैपनिंग, ये हमेशा हो रहा है कि नहीं. तो क्या होगा, हिमालय इज ऑल्सो राइजिंग डेली, बट वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व इट, है ना. हिमालय भी राइज कर रही है, एंड कहते हैं कि ये जो है क्या इसका राइज है 5 सेंटीमीटर पर ईयर, है ना. तो हिमालय इज ऑल्सो राइजिंग, ठीक है. तो ये क्या है कि this is a zone of subduction. Since this is a zone of subduction, earthquake is bound to happen. Some landslides in the Himalayas region is bound to happen. कुछ न कुछ खलबली अगर नीचे हो रही है तो ऊपर की चीजों को वो जरूर हिलाएगी, है ना. तो इसीलिए this is called zone of subduction, and this is an unstable region, and the Indian extra peninsular region is unstable. So these are the two basic, this is the one basic feature of the Indian geological structure. ठीक है. Now we will study about the second feature, that is protocontinent. जो ये हमारा इंडिया है, इट्स अ यूनिक फीचर, ठीक है. आवर इंडियन लैंड मास, द करेंट लैंड मास अभी जो है, दैट इज बिल्ट अप ऑफ स्मॉल स्मॉल कॉन्टिनेंट्स, स्मॉल स्मॉल लैंड मास, ठीक है. एक तरफ से इसको कहते हैं अरावलियन लैंड मास, ठीक है. दूसरा ये साइड क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड सिंगभूम, एंड दिस थर्ड वन इज कॉल्ड धारवाड़. तो एक तरह से ये जिक्सॉ फिट, मतलब आपस में आके ये फिट कर गए. ये यहां पे था, ये यहां से आ गया, ये यहां से आ गया, ठीक है. तो बिल्कुल फिट कर गए हैं, ठीक है. दीज 3 प्रोटोकॉन्टिनेंट्स have fitted themselves each other, ठीक है. अब ये जो अरावल, एक तो अरावलियन लैंड मास है, दूसरा इधर धारवाड़ है, तीसरा सिंगभूम है. तो इन दोनों के बीच में क्या है, गैप तो होगा इनिशियल फेज में. ये जो ज्वाइन किए हैं, किसी न किसी प्लेस पे ज्वाइनिंग तो किए हैं, तो इसको हम लोग दैट ज्वाइंट्स को क्या कहते हैं, ज्वाइंट्स को कहते हैं लिनियामेंट्स, लिनियामेंट्स. एक तो ज्वाइन ये हो गया नर्मदा का, नर्मदा,
दूसरा इधर सोन लिनियामेंट हो गया, और ये गोदावरी, गोदावरी। तो ये 3 लिनियामेंट्स डेवलप हुए हैं इसमें। When these proto-continents were fitting to each other, 3 major joints came into existence: नर्मदा, सोन, गोदावरी। एक तरफ से ये अरावली है, वो इधर, ये सिंहभूम ये इधर, और धारवाड़ वाला इधर, और बीच में ये गोदावरी। इसलिए इसको फॉल्टेड रीजन भी कहते हैं हम लोग, फॉल्टेड रीजन में। एंड व्हाट हैपेंड दैट स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन दीज फॉल्ट्स द डिपोजिशन स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। तो वो कहते हैं ना हम लोग जियो सिंक्लाइन वाला। हाँ, जैसे हिमालय के पास क्या था पहले, इट वॉज अ सी, टेथिस सी वॉज देयर, बट व्हेन द इंडियन लैंड मास मूव टुवर्ड्स द यूरेशियन लैंड मास, तो उसके बीच में जो है यूरेशियन लैंडमास से बहुत सारे रिवर्स जो हैं अपने साथ जो मिट्टियाँ बहा कर लाई, उसमें डिपॉजिट होने लगे। उसके बाद दोनों तरफ से जब कंप्रेशन हुआ तो दैट जियोसिंक्लाइन डेवलप्ड इनटू द माउंटेन। इन द सेम फैशन विद इन दीज 3 प्रोटो कॉन्टिनेंट, सेम स्टोरी रिपीटेड। अब इसमें क्या हुआ, एक तो जब नर्मदा और सोन के आसपास का जो एरिया था, ये जियोसिंक्लाइन का जो बेल्ट था, उसमें क्या हो गया कि एक तरफ से अरावली रेंज, अरावली माउंटेन डेवलप हो गया, है ना, अरावली, ठीक है, सतपुड़ा, इस तरह के रेंज, इस तरफ मैकाल रेंज डेवलप हो गए, ठीक है। तो ये रेंजेस जो है वो डेवलप हुए। तो ये और फिर क्या हुआ कि ये जो है मतलब प्लेटूज भी डेवलप हुए, है ना, एक स्टेबिलिटी आने लगी, ये उसमें इरोजन होने लगा उस एरिया में, तो वो प्लेटू, जैसे सिंहभूम का छोटा नागपुर का प्लेटू उधर डेवलप हो गया इस एरिया में, छोटा नागपुर का प्लेटू, ठीक है। तो इस तरह से ये 2-3 घटनाएं हुई। नीचे में ये धारवाड़ प्लेटू हो गया। तो इस तरह से, हाँ जी, उतार लो भी। जी हाँ, कुछ एरियाज में जैसे इधर ईस्टर्न घाट के माउंटेन वे, यहाँ पे बीजावल सीरीज, ठीक है, यहाँ पे अरावली, उसके बाद सतपुरा, ठीक है, इस तरह के रेंजेस डेवलप हुए, ठीक है। हाँ, वो जियोसिंक्लाइन में हुआ। Now, this entire Indian land mass, in order to study the entire geological structure of the India, we have divided, for our convenience, we have divided the Indian land mass into the 3 parts. One is the peninsular south, which is stable, and the second one is the extra peninsular region that includes Indo-Gangetic Plain, Himalaya, and third one is the island. So 3 major geological structure of India are Himalaya and extra peninsular region. Peninsular region पहला ये है। दूसरा क्या है? Peninsular region, and the third one is group of island. तो 3 kind of geological structure of India is available. Now let us see that how in the geological time scale it has evolved and what kind of rocks have been
डेवलप्ड। तो पहले हम देखें कि किस किस एरा में, किस किस ईयन में, किस किस इपोक में के रॉक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। फिर देन वी विल स्टडी इन अ डिटेल व्हाट आर द डिविजन्स। ठीक है, हम लोग इसको डेवलप। नाउ who gave the first geological structure of the world? The first geological structure of the world was given by Comte de Buffon. Geological structure of the world किसने दिया था? Comte de Buffon। और इंडिया का किसने दिया? The first time the classification of the geological structure of India was given by whom? So it was Henry Thomas Holland. He was from the Geological Survey of India, H.T. Holland, who gave the first time the geological structure of the India. And he said that the Indian geological structure or the Indian rock types belongs to Precambrian era to the recent era. Indian geological structure belongs to Precambrian to recent। ठीक है, रिसेंट एरा, प्री कैम्ब्रियन से लेके रिसेंट एरा तक के रॉक मतलब इंडियन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको लेट अस डिवाइड इट। तो इसको 4 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया। इन्होंने मतलब हॉलैंड ने, हम लोगों ने का मतलब है कि हॉलैंड जी ने डिवाइड किया। क्या डिवाइड किया उन्होंने? पहला प्री कैम्ब्रियन रॉक, प्री-कैम्ब्रियन वर्ड कहां से आया आपको पता है? तो प्री-कैम्ब्रियन pertains to the or the precedes the कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन से पहले। और कैम्ब्रियन वर्ड जो है, कैम्ब्रियन काइंड ऑफ रॉक इज फाउंड इन द वेल्स रीजन ऑफ इंग्लैंड। तो वहीं से प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन इस तरह के वर्ड्स आए हैं। एंड वर्ड्स 80% of the rock belongs to this Precambrian era। ठीक है, वर्ल्ड के 80% रॉक प्री-कैम्ब्रियन एरा नहीं, इसको रादर हम लोग बोले इयॉन के हैं। तो 80% ऑफ द रॉक ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग्स टू प्री-कैम्ब्रियन एरा। एंड प्री-कैम्ब्रियन एरा को हम लोगों ने, प्री-कैम्ब्रियन जो इयॉन को हम लोगों ने डिवाइड किया है आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक और सेकेंड वन इज धारवाड़ ग्रुप ऑफ रॉक। 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है प्री-कैम्ब्रियन को। आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक दैट इज आर्कियन नीस एंड सिस्ट, और दूसरा धारवाड़, आर्कियन नीस एंड सिस्ट, और दूसरा क्या हुआ? धारवाड़ ग्रुप ऑफ रॉक। ठीक है, आर्कियन नीस एंड सिस्ट एंड आर्कियन में दूसरा है धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक। सेकेंड वन इज पुराना रॉक। पुराना रॉक एक तो हो गया आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक, आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक है हमारा पहला। ठीक है, दूसरा पुराना, इसको हम लोग प्रोटेरोजोइक भी कहते हैं, प्रोटेरोजोइक। पुराना को अगेन हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, विंध्या ग्रुप
विंध्या ग्रुप एंड कुडप्पा ग्रुप ऑफ रॉक। ठीक है, पुराना सिस्टम को हम लोग प्रोटेरोजोइक भी बोलते हैं, और इसमें प्रोटेरोजोइक का क्या है, प्रोटेरोजोइक इयॉन में ही पुराना ग्रुप के रॉक डेवलप हुए, और इसमें विंध्या ग्रुप और कुडप्पा ग्रुप। थर्ड इज द्रविडियन ग्रुप ऑफ रॉक, द्रविडियन ग्रुप ऑफ रॉक of group of Dravidian group of rock। समझ रहे हैं आप? तो द्रविडियन ग्रुप ऑफ रॉक बिलोंग्स टू 600 to 400 million years ago, 600 to 400 million years ago, 400 ये साल, 600 मिलियन साल से 400 मिलियन साल में के बीच जो रॉक का जो डेवलपमेंट हुआ उसको कहते हैं द्रविडियन ग्रुप ऑफ रॉक। और इस द्रविडियन ग्रुप ऑफ रॉक को हम लोग पैलियोजोइक रॉक भी कहते हैं, पैलियोजोइक रॉक। और ये दिस बिलोंग्स टू द कैम्ब्रियन इयॉन के ये लोग पार्ट हैं। ठीक है, कैम्ब्रियन के पार्ट हैं, ये एक कैम्ब्रियन एरा के पार्ट हैं। ठीक है, और इसको फर्दर हमने डिवाइड किया है कॉस डीसी। किसमें डिवाइड किया है, आप लोग भी अपने तरह से नॉमेनक्लेचर ढूंढ लीजिए। कॉस डीसी लिखिए, COS DC, तो क्या होगा ये कैम्ब्रियन। दूसरा ऑर्डोविशियन, तीसरा सिलूरियन, चौथा डेवोनियन, और पांचवा कार्बोनिफेरस। कैम्ब्रियन सबसे पुराना, कार्बोनिफेरस इसमें सबसे नया हो गया, है ना। तो ये डिविजन्स हैं द्रविडियन ग्रुप ऑफ रॉक। इसे पैलियोजोइक रॉक भी कहते हैं, इसे कैम्ब्रियन रॉक भी कहते हैं, और ये 600 मिलियन ईयर से 400 मिलियन ईयर से को इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, एंड देन द नेक्स्ट इज द आर्यन ग्रुप ऑफ रॉक, आर्यन ग्रुप ऑफ रॉक। इसे हम लोग दो पार्ट्स में टर्शियरी एंड रिसेंट ग्रुप भी इसे कहते हैं। तो आर्यन ग्रुप ऑफ रॉक बिलोंग्स टू GTJC एंड रिसेंट, ये वाला रिसेंट। ठीक है, GTJC एंड रिसेंट इसको बोलते हैं। एंड G स्टैंड्स फॉर गोंडवाना, T ट्रियासिक, J जुरासिक, एंड C इज क्रिटेशियस, लावा वाला, है ना, क्रिटेशियस। ये GTJC। एंड देन कम्स टर्शियरी ग्रुप के तो रॉक, ये कौन, सॉरी, ये आर्यन ग्रुप के रॉक ये हुए GTJC एंड टर्शियरी। अब टर्शियरी में कौन कौन से आएंगे, ये हो गया एक, तो एक ग्रुप तो ये हो गया, दूसरा है टर्शियरी और रिसेंट, टर्शियरी और रिसेंट ग्रुप। ठीक है, अब इसमें किस किस तरह के रॉक्स आएंगे, तो इसमें आएगा एक तो क्वाटरनरी, नियोजीन, पैलियोजीन। क्वाटरनरी सबसे ऊपर होगा, क्वाटरनरी, फिर
आएगा नियोजिन, एंड उसके बाद आएगा पैलियोजिन। क्वाटरनरी में क्या है? होलोसिन, होलोसिन एंड प्लीस्टोसिन। हाँ बेटा उतार लो, उतार, हाँ, होलोसिन एंड प्लीस्टोसिन। नियोजिन में आएगा प्लायोसिन, मायोसिन, ठीक है, प्लायोसिन, और ये आ गया आपका मायोसिन, ठीक है। नियोजिन में आ गया प्लायोसिन, मायोसिन, और इसमें पैलियोजिन में आ गया, पैलियोजिन में आएगा ओलिगोसिन, इयोसिन, पैलियोसिन, ओलिगोसिन, इयोसिन, इयोसिन और पैलियोसिन। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे इस तरह के रॉक हमारे यहाँ पाए जाते हैं। These kind of rocks are found in the geological structure of India. This classification was given by Henry Thomas Holland. ठीक है, किसने दिया था? T.H. Holland या थॉमस हेनरी हॉलैंड या हेनरी थॉमस हॉलैंड, जो भी आप बोलें, ठीक है, उन्होंने दिया था। वर्ल्ड का किसने दिया था? कॉम्टे डी बुफन में, ठीक है।